के लिए डांस प्रोग्राम भी तैयार किया है। देखी मरना जाई तू संग नाल मुंडिया, गल करनी पैंदी है टंग नाल मुंडिया। देखी मरना जाई तू संग नाल मुंडिया, गल करनी पैंदी है टंग नाल मुंडिया। जे मैनू करदा पसंद क्यों नहीं बोलदा, करदा पसंद क्यों नहीं बोलदा। रोज लंघ जाना देख मेरा मुंह वे, मैं कुड़ी होके एने नखरे नहीं करदी, जिन्ने मुंडा होके करदा है तू वे। मैं कुड़ी होके एने नखरे नहीं करदी, जिन्ने मुंडा होके करदा है तू वे। See roots. मुंज मित्रा ना रहना विच टौर कट के, और पासे तुर जाना मेरा राह छड़ के। रख दी राज गट्टी नूं प्यार करदा, मैनूं पता मेरे उत्ते कदों दा तू मरदा। गब्बरू नाल जुड़ चुकिया, गब्बरू नाल जुड़ चुकिया, मैनूं बेबे दी बनाउणा जितनू वे। मैं कुड़ी होके एने नखरे नहीं करदी, जिन्ने मुंडा होके करदा है तू वे। मैं कुड़ी होके एने नखरे नहीं करदी, जिन्ने मुंडा होके करदा है तू वे। मौका जिंदगी च कदे वार वार ना मिले, टाइम लंघ जांदा फिर बंदा करदा गिले। मुंडा सट ले कनेडा टराला अपना, तेरे पल्ले ही ना रहे पवे रान अपना। रिंग सेरेमनी होगी किसे होना, एंगेजमेंट होगी किसे होना, फिर सादा फिर कानूनू वे। मैं कुड़ी होके एने नखरे नहीं करदी, जिन्ने मुंडा होके करदा है तू वे। मैं कुड़ी होके एने नखरे नहीं करदी, जिन्ने मुंडा होके करदा है तू वे। पर आकर परफॉर्म करने में बहुत मेहनत लगती है। इसके बाद कुछ बता ओमकार, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Boys under 14, first Shubhanshu, 200 meter race, first Shubhanshu, second Rohit and third Prunal. Please come. Boys under 17, first Deepak, second Mangal Pandey, third Amar. Please come on the stage. Boys under 19, first Vishal, second Shubham and third Suraj. Please come on the stage. Girls under 14, first Divya, second Sakshi, third Nikunj. Please come on the stage. Girls under 17, first Tanya, second Dipti, third Sneha. Please come on the stage. Girls under 17, third Snehani Riya. Please come. Now I would like to invite 2011-2012 batch. Please come on the stage and distribute the prizes. 100 meter race, boys under 14, first Rohit, second Suraj, third Arvadan. Please come on the stage. Boys under 17, first Deepak, second Mangal Pandey, third Amar. Please come on the stage. Boys under 19, first Shubham, second Vishal, third Suraj. Please come on the stage. Girls under 14, first Sakshi, second Divya, third Khushbu. Please come on the stage. Girls under 7, second Roshni, third Riya. बेटा आ गया हो। I'd like to invite 2013 batch alumni to distribute the prizes. This row, boys under 17, first Harsh,
second Saurabh, third Atul. Please come on the stage. Disc throw boys under 19, first Nitin Tovaria, second Vishal, third Suraj. Please come on the stage. 2000 dash. अपने अपना प्राइज लीजिए और सामने से ही वापस निकलिएगा। Please come on the stage. Javelin throw. Please, I would like to invite 2014 batch alumni. Please उसके लिए girls ready रहे बैक स्टेज। आ जाओ चारों आ जाओ अंडर 19 फर्स्ट ऋतिक कोवरिया, सेकंड विशाल, थर्ड सूरज। इधर देखो इधर Now I would like to invite 2015 to 2016 batch alumni. Please come on the stage and distribute the prizes for long jump. Boys and Sudhanshu, please come on the stage. Boys under 17, first Sahil, second Amar, third Vishal. यस यस गर्ल्स क्लास 6 लॉन्ग जंप, फर्स्ट क्यारा, सेकंड पायल, थर्ड ऋषिका। प्लीज कम ऑन द स्टेज। गर्ल्स अंडर 14 फर्स्ट दिव्या, सेकंड तारा। बॉयज गर्ल्स अंडर 19 फर्स्ट दिव्या, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Boys junior, first Komal Pandey, second Rajkamal and third Tanuj Davar. Please come on the stage. यस यस लुक हियर Senior boys under 19, first Jatin, second Shubham, third Pankaj. यस बच्चों इधर देखो इधर Now I would like to invite 2018 batch. Please come on the stage. 2018 batch. Boys long jump, first Suraj. Okay, yes, look here. Third Pradeep. Please come on the stage. Holding out. यस यस Boys 50 meter race, first Suraj. Girls 50 meter. First Payal. Second Kyara. Third Dalika. स्टेज पर आ जाएं। स्कूल कैप्टन के लिए ओके यस स्माइल भाई इधर आंधी भाई एक नंबर आंधी देखो एक और इधर आ जा परमजीत इधर आ जा भाई थोड़ा लेट पहुंचे लेकिन भैया भी हमारे बीच आ गए हैं और इनको प्राइज अभी मिलेगा। मिस्टर राकेश राय सर्विंग इन इंडियन नेवी। बेटा जोरदार तालियां बजाएं। यहाँ पर जितने एलुमनाई आए हुए हैं आज अपने फील्ड में बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जो जहाँ भी है, और आप सबके लिए ये एक मोटिवेशन है कि आप सबको भी ऐसे ही जो भी आप फील्ड चुने उसमें मेहनत से काम करना। प्रकाश जी यहाँ बैठे बच्चे ध्यान दें, आपके बीच आज हर फील्ड से देखो एलुमनाइज आए हुए हैं। हम सब भी कभी यहीं थे बेटा, आप सबके बीच में यहीं पढ़ते थे और यहीं से इंस्पिरेशन लेके आगे बढ़ गए और आज देश के हर कोने में सर्विस दे रहे हैं अपनी। आप सब भी ऐसा बन सकते हैं। आज ये आप सबको अपने दिल में उम्मीद बनानी है। इट्स एन ऑनर। स्कूल कैप्टन्स के लिए आज ये बहुत यादगार दिन रहेगा कि इंडियन नेवी
और ये तनिषा कुकरेती, अंशुका, ऋतु, दिव्या दीक्षित, तान्या स्टेज पे आ जाए। वेट यस बच्चों को थीम दिया गया था संकल्प मेरे जीवन का। इसमें मोहित क्लास 10th अरावली हाउस स्टूडेंट, उसने बनाया बहुत अच्छा, इसीलिए स्पेशल प्राइज उसको मैं देती हूँ। लेकिन उसका थीम बेस नहीं था थोड़ा, तो थोड़ा सा थीम का ध्यान रखें। और बहुत सारे बच्चों ने थीम ही बहुत उल्टी लिखी थी, तो बहुत सारे बच्चे सुंदर बनाने के बावजूद सेलेक्ट नहीं हुए। और ये सब यहाँ पे डिस्प्ले भी है, ये वाले सारे प्रोग्राम तो आप देख सकते हैं। ये सारे ड्राइंग कंपटीशन, पोएम कंपटीशन, तो इनको आप देख सकते हैं। बट ये थीम बेस्ड प्रोग्राम था, थीम बेस्ड कंपटीशन था, तो थीम के अनुसार ही डिस्प्ले भी मैंने किया है। क्योंकि मैं अगर आप बोर्ड की शीट पे पेपर ला करके घर से शीट ले जा करके पेपर करोगे तो आप बताओ कितने मार्क्स मिलेंगे उस शीट में? बहुत बढ़िया, कितने मिलेंगे? तो एक बच्चे ने बहुत ही स्मार्टली अपनी शीट फाइल में से निकाल के उसमें बहुत सुंदर ड्राइंग बना के मुझे दे दी, तो वो डिस्क्वालीफाई हो गया है। नाम मैं नहीं बताऊंगी, पर ऐसे कार्य ना करें, ये अनुचित और अव्यवहारिक है। आइए बच्चे। Now I would like to invite 2007 and 2008 alumni. Please come on the stage. 2007 and 2008 alumni. देखिए प्रोग्राम बहुत अच्छे तरीके से कोशिश यही की गई है कि कोई छूट ना जाए, कोई एलुमनाई ना रहे और कोई बच्चा ऐसा ना रह जाए जिसने पार्टिसिपेट किया हो, पोजीशन ली हो और उसको प्राइज ना मिले। तो प्लीज अगर अभी कोई एलुमनाई ऐसे रह गए हैं जो टीम पर अब तक नहीं आए हैं, प्लीज आ जाए। क्या था, टीम को प्राइज मिल गई, तो जोरदार तालियां इनके लिए। सीनियर बॉयज फर्स्ट आर्यन राज, सेकंड पार्थ गुप्ता, थर्ड सक्षम श्रीवास, प्लीज कम ऑन द स्टेज। जूनियर गर्ल्स फर्स्ट जानवी प्रधान, सेकंड मिशिका नेगी, थर्ड कुमारी प्रणिका। गर्ल्स जूनियर सेकंड प्राइज जानवी। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज स्टेज पर आ जाए। बाद में ये नहीं कहिएगा कि हमें नहीं बुलाया, क्योंकि मैं बहुत बार बुला चुकी हूँ। बच्चों ने बहुत मेहनत की है। Happy birthday to you. May God bless you. May God bless you. बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए। Day to संजय, हैप्पी बर्थडे टू यू। डांस वाले बच्चे वेट कर रहे हैं, स्टेज पर आ जाएं। अभी बच्चे भी काफी देर से बैठे हैं। बेटा अभी एक डांस प्रोग्राम है, इसके बाद जितने भी बच्चे यहाँ वॉलंटियर्स हैं उन लोगों ने बहुत धैर्य के। पवन कुमार रेडी रहे। और पीछे आना पड़ेगा। जानू सू तेरे बतानेर, जानू सू तेरा प्यार जले, छेड़ पलम मेरे चुंदड़ नैना, हो जागी तकरार जले, छेड़ पलम मेरे चुंदड़ नैना, हो जागी तकरार जले।
Jason Sarmai and Freedom Bradley. कोटे चढ़ल करूं दिखे हो मेरा दामन लिए कोटे चढ़ल करूं दिखे हो मेरा दामन लिए तू दमड़ के करी तना मैं जिनस दुआ दूं तू दमड़ के करी तना मैं जिनस दुआ दूं सारा काम जड़ा गल लांडी कुड़ती ला दूं सारा काम जड़ा गल लांडी कुड़ती ला दूं सारा काम जड़ा गल लांडी कुड़ती ला दूं मेरा ढोल तू है मैं लट्टी कैसे मेरा ढोल तू है मैं लट्टी कैसे मेरी बोरी बोरी मट्टी कैसे मेरे बोरी बोरी मट्टी कैसे मेरा लुड़ जावे हो शरीर पर सीने होले रे मेरा लुड़ जावे हो शरीर पर सीने हो के ऊपर सजा बोरला दामड़ लिया पैर कड़े कड़ोले हाथा के मां बन के चाली शहर ओ नाक में कोका सोने आला पल्ला लटके के बुढ़ी न्यू मटके बुढ़ी न्यू मटके बुढ़ी न्यू मटके सासू ढूंढ लड़ाई मन न्योरी करते तेरा बिना होया मेरा गुर्जर बंद करते तेरा बिना होया मेरा गुर्जर बंद करते पहलम तो मन्ने शॉपिंग करा दे पहलम तो मन्ने शॉपिंग करा दे फिर जाइए हो पलटन में फिर जाइए हो पलटन में हो पानी लेवण में गई मन गड्ढा कच्चा सूट पानी लेवण में गई मन गड्ढा कच्चा सूट किरांडे
नोट पिया मैं डीजे पे मटकूंगी तुम्हारे चाहिए नोट पिया मैं डीजे पे मटकूंगी एनसीसी कैडेट्स जो सुबह से ड्यूटी दे रहे हैं, वेट एनसीसी कैडेट्स भी स्टेज और सबसे ज्यादा मेहनत की है, जो इतनी देर से आराम से बैठे हैं, हम सबको पता है। और इन बच्चों ने बहुत पेशेंस दिखाई है। हमारे एलुमनाई भी थोड़ी पेशेंस दिखाए। इसके बाद आइए प्लीज, और कौन है? ओके, यस यस, लुक हियर सर। हाँ जी सर, इधर आप आए हैं, आना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। बच्चे इंतजार कर रहे हैं आप लोगों के लिए। थोड़ा सा जी बाबू, थोड़ा सा हेलो हेलो। थोड़ा उधर हो जाओ, थोड़ा उधर हो जाओ। सब लोग बैनर पे आ जाइए। यस यस, लुक हियर। शुक्रगुजार पवन भाई जी का, उन्होंने मुझे अवसर दिया यहाँ पे गाने के लिए। अच्छा, सभी साथ में गाएंगे तो शायद ज़्यादा अच्छा लगेगा। यारियों 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 में औंदे ना फासले, ये नाराजगी कागजी सारी तेरी, मेरे सोनिया सुन ले मेरी दिल दियां गल्लां, करांगे नाल नाल बैठे अखां नाल अख नूं मिला के, दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैठे अखां नाल अख नूं मिला के, सताए मैनू क्यों दिखाए मैनू क्यों, एवें झूठी मोटी रुस के रुसा के, दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठे अखां नाल अख नूं मिला के। रखा तो छुपा के रखा खाते सजा के, तू मेरी वफा रख अपना बना के, मैं तेरे लैया यारा ना पावी कदे दूरियां, तेनू लखा तो छुपा के रखा खाते सजा के, तू मेरी वफा रख अपना बना के, मैं तेरे लैया यारा ना पावी कदे दूरियां, मैं जीना हाँ तेरा मैं जीना हाँ तेरा, तू जीना है मेरा, नखरा दिखा के दिल दियां गल्लां करांगे नाल नाल बैठे अख नाल अख नूं मिला के, दिल दियां गल्लां करांगे रोज रोज बैठे सच्चियां मोहब्बतां निभा के। पॉसिबल ही नहीं था। तो प्लीज उनके लिए एक बहुत जोरदार तालियां। भाई साहब जितने भी पीछे खड़े हैं सारे आ जाओ, बैठ जाओ। भाई साहब, ये छोटे बड़े भाई जितने भी भाई खड़े प्लीज बैठ जाइए। जो भी इच्छुक है बोलने के लिए, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं, प्लीज आ जाइए। जैसा कि आपको पता है, हमारी एलुमनी मीट का इस बार का जो थीम था, उसका नाम था संकल्प।
सो संकल्प से हमने ये संकल्प दिया था कि इस बार हम लोग स्कूल में आएंगे, आप लोगों से मिलेंगे, आप लोगों का मार्गदर्शन करेंगे और हम संकल्प लेंगे आगे के लिए कि आपकी बेहतरी के लिए जो भी कर सके हम करेंगे। और इसीलिए ये हम लोग यहाँ पे सब इकट्ठे हुए हैं कि किसी भी तरीके से अगर हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। इस स्कूल ने हमको बहुत कुछ दिया करने को, आज हम आप लोगों के सामने खड़े हो पा रहे हैं तो इस स्कूल की बदौलत है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ जब आप लोग स्कूल से निकलोगे ना, आप बहुत याद करोगे स्कूल को। और यही वजह है कि आप लोग देखते हैं हम दूसरे तीसरे दिन यहाँ पे आकर बैठ जाते हैं आपके पास। ये आपको स्कूल है जो हमको बुला लेता है। टीचर्स को हम नहीं जानते लेकिन आज भी उतना ही प्यार उनको मिलता है जितना हमारे जो जानते टीचर वो हमको देते थे। तो ये जुड़ाव जो आपको कहीं नहीं मिलेगा तो यहाँ पे मिल गया। तो मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं लंबा खींचूंगा। अगर कोई भाई बहन अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं टू मोटिवेट दीज पीपल, प्लीज़ कम अप। मैं धर्मेंद्र डागर भाई साहब को बुलाना चाहूँगा। धर्मेंद्र भाई साहब ने अभी यूपीएससी क्लियर करके अभी घुमरडा स्कूल में एज ए प्रिंसिपल ज्वाइन किया है। ये हमारे लिए सबके लिए एक प्रेरणा स्रोत है। प्लीज क्लैप। ये तालियां नहीं रुकनी चाहिए जब तो स्टेज पे नहीं पहुंचते हैं। थैंक यू प्रदीप भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं विद्यालय के प्रिंसिपल आदरणीय श्री मनोज ठाकुर जी को नमन करता हूँ। सभी शिक्षकों को मेरा वंदन। सभी जो पास आउट छोटे बड़े भाई बहन हैं सबको नमस्कार और छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार। ये जो मिट्टी है, ये जो हवा है और यहाँ का जो पानी है, यहाँ आने के बाद चूंकि लड़के हैं इसलिए ये अनुभूति वैसे तो कभी नहीं मिलती कि हम अपने मायके गए हों। महिलाओं को ही ये सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन जब कभी इस पावन भूमि पर कदम रखते हैं तो लगभग वैसी ही अनुभूति होती है जैसी बहनों को मातृशक्ति को अपने मायके जाने के बाद होती। जीवन का महत्वपूर्ण समय इस पावन भूमि पर बिताया है। 1993 में जब एडमिशन लिया तो घुमनहेड़ा के अंदर पुरानी बिल्डिंग थी। जब 9th क्लास में थे तो यहाँ शिफ्ट हुए। काफ़ी सारे चेंजेस आप लोगों को नज़र आते हैं। अभी 2000 में पास आउट हुए। 2003 में मैंने ग्रेजुएशन किया, देन बीएड, देन एमएड, देन एमएससी ज्योग्राफी, साथ में पीएचडी चलती रही। 3-4 साल बीएड कॉलेजेस में काम किया, फिर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को एज टीजीटी सोशल साइंस ज्वाइन किया 2009 में। उसके बाद 2017 में एज डायरेक्ट पीजीटी ज्योग्राफी ज्वाइन किया। और फिर एक और सौभाग्य है, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की महिमा कि जहां हम दिल से जुड़े होते हैं वहां हमें वो पुनः पहुंचा देता है। तो 2020 में एससीईआरटी दिल्ली में डेपुटेशन पे जाना हुआ और डाइट घुमनहेड़ा में पोस्टिंग हुई जहां लगभग 2.5 साल काम किया एज असिस्टेंट प्रोफेसर। और वही बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग के अंदर हम कभी रहे थे, हमारा हॉस्टल भी उसी में था, हमारी क्लासेस भी उसी में थे, अरोड़ा सर भी वहीं रहते थे, हमारे टीचर्स भी वहीं रहते थे, हम भी वहीं रहते थे। उस बिल्डिंग में काम करने का और डीएलएड स्टूडेंट्स को पढ़ाने का सौभाग्य मिला। और अभी 2003 में जो है, जैसा अभी यहाँ से पवन भाई ने शेयर किया कि एक दूसरा उत्तरदायित्व मिला और सर्वोदय बॉयज़ विद्यालय उत्तम नगर में एज प्रिंसिपल ज्वाइन किया। और फिर वही के प्यार, स्नेह, भावनाएं पुनः खींच लाती हैं। पुनः अभी दिसंबर में घुमनहेड़ा विद्यालय में ही सर्वोदय विद्यालय में एज प्रिंसिपल ज्वाइन किया। देखिए, ये बातें कहने या बताने के पीछे पर्पस केवल एक है कि इसका सारा श्रेय केवल और केवल नवोदय विद्यालय का है। इसके अतिरिक्त मेरा इसमें केवल इतना योगदान है कि मुझे जैसा मार्गदर्शन दिया गया मेरे गुरुओं के द्वारा, इस विद्यालय के द्वारा, केवल मैं उस मार्ग पर चलता रहा और कब किस रास्ते से मुड़ते हुए मंजिल मिल गई उसमें मुझे भी नहीं पता। तो पूरी कृतज्ञता, पूरा ग्रेटिट्यूड नवोदय विद्यालय को है, गुरुओं को है। और कहते हैं ना कि एकलव्य ने अपना अंगूठा दिया था गुरु दक्षिणा में। बातें बहुत बड़ी हो सकती हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम और आप मर्जी वो न्योछावर कर दें, लेकिन हम नवोदय विद्यालय का ऋण कभी उतार नहीं सकते और इस ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि जीवन बनाने का काम किया है। हमारे साथ रहने वाले, पढ़ने वाले, अड़ोस पड़ोस के बच्चे भी हमने देखे हैं, हमने स्वयं को भी देखा है। और
जिस प्रोफेशन में गए, उस प्रोफेशन में जाने के बाद जो हमारी कार्यशैली है, उस कार्यशैली को देखने के बाद दूसरे जिस प्रकार से प्रशंसा करते हैं, तो ठीक है, प्रशंसा पर खुशी अवश्य होती है, लेकिन निश्चित रूप से उस प्रशंसा के समय ये भाव मन में हर समय बना रहता है कि इस प्रशंसा का वास्तविक जो हकदार है वो नवोदय विद्यालय है। चाहे इवैल्यूएशन की बात हो, जब हम CCE पैटर्न आया नवोदय विद्यालय में, तो हम 6th क्लास से जब से पढ़े लगभग वही पैटर्न रहा, उसी तरीके से हमारा मूल्यांकन हुआ। लेकिन जब डायरेक्टरेट में गए तो वहाँ जाते ही CCE पैटर्न इंट्रोड्यूस हुआ और टीचर्स, प्रिंसिपल, कोई भी उस पैटर्न से अवेयर नहीं था। तो जो नवोदय विद्यालय से गए हुए थे उन्होंने दूसरों के लिए एक किस्म से मार्गदर्शक का काम किया, क्योंकि हम उस रास्ते से होकर के गुजरे थे। यहाँ का जो अनुभव है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में हो, क्योंकि अपॉर्चुनिटी नवोदय विद्यालय ने ये भी दी थी कि जब हम थे तो हाउस कैप्टन रहे, स्कूल कैप्टन के रूप में भूमिकाएं साथियों को मिली, कोई स्पोर्ट्स कैप्टन के रूप में मिली, तो कहीं ना कहीं वो जो अनुभव मिला, वो अनुभव सदैव हमारे जीवन में काम आया। एक छोटा सा दुख है, असफलता है, मुझे नहीं लगता कि किस रूप में उसको कहूं, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि एक जगह मैं अपने आप को पाता हूं कि हाँ मैं वहां पीछे रह गया। टीचर हमें शानदार मिले, बहुत बढ़िया मिले, लेकिन शायद किस्मत थोड़ी सी इस मामले में, क्योंकि हर इंसान को सब कुछ नहीं मिलता, तो बीमार होने की वजह से जो एक लंबे समय तक जो हाथ था वो थोड़ा सा बेहतर काम नहीं कर पा रहा था लेफ्ट हैंड साइड का, और उस वजह से म्यूजिक में थोड़ा सा मैं पिछड़ गया। और वही चीज़ मुझे आज सालती है कि काश एक म्यूजिक और बढ़िया होता, क्योंकि बाकी कहीं कुछ लगता नहीं है। ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से आप लोग बैठे हैं। हाँ, अपने छोटे भाई बहनों को ये ज़रूर कहूँगा कि यहाँ जब आप हैं तो आप ऐसे वृक्ष के नीचे हैं जहाँ आपको फल फूल और शीतल हवा मिल रही है। इनकी कदर कीजिए, इनका सम्मान कीजिए। ऐसा होगा कि आपको कभी डांट भी लगेगी, कभी हो सकता है छोटा मोटा कोई थप्पड़ भी लग जाए, लेकिन वो प्रसाद है। वो जिंदगी में किस्मत वाले विद्यार्थी होते हैं जिनको इस प्रकार का प्रसाद अपने गुरुओं से प्राप्त होता है। देखिए, जब मैं शिक्षक बना तो एक बात जरूर महसूस हुई, एक अनुभव जरूर रहा, वो शेयर करूंगा कि एक शिक्षक को कभी ना कभी स्टूडेंट्स के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से मन ही मन में को भाजन का शिकार भी बनना पड़ता है, क्योंकि डांटते हैं, डपटते हैं, होमवर्क के लिए कहेंगे तो उस समय हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन उस शिक्षक को देखिए जिसे पता है कि आप इस समय उसके किस प्रकार के दृष्टिकोण के साथ हैं, और उसके बावजूद वो उस तरह के कदम उठा रहे हैं। सोचने की बात यह है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि यदि आज वो आपसे अच्छे अच्छे बन जाएंगे तो जब आप इस विद्यालय से पास आउट होकर जाएंगे और बाई चांस आप 1% सोच के चलिए अपने जीवन में सफल नहीं हुए, तो सबसे ज्यादा कष्ट, सबसे ज्यादा पीड़ा यदि किसी शख्स को होती है तो वो आपका शिक्षक होता है। वो शिक्षक उस दिन की पीड़ा को नहीं झेलना चाहता, इसलिए वो आज बुरा बनने को तैयार रहता है। तो गुरुओं का सम्मान, गुरुओं का मान कभी कम मत होने दीजिएगा। उनकी डांट को, उनकी मार को सदैव प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिएगा। मैं अपने सभी एल्यूमिनी भाई बहनों की तरफ से आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि हम लोगों की जिस भी रूप में, हम में से अलग अलग प्रोफेशन में हैं। सब्जेक्ट की बात करो तो मेरा विषय ज्योग्राफी रहा। यदि विद्यालय में कभी ऐसी कोई परिस्थितियां बनती हैं कि शिक्षक का अभाव है, तो हम उसके लिए सदैव प्रस्तुत हैं। इतना हो सकता है कि मेरे विद्यालय का समय 2:30 बजे है, तो मैं आपके प्रेप के समय में मौजूद हो पाऊं, या दूसरे भाई बहन आपके प्रेप के समय में मौजूद हो पाएं। एल्यूमिनी मीट में ऐसा संभव सदैव नहीं हो पाता कि हर किसी को
अपनी बात कहने का, बात रखने का मौका मिले, मुझे ये मिला, मैं सौभाग्यशाली हूँ। लेकिन हम सभी आपके सीनियर्स आपके लिए सदैव प्रस्तुत हैं। जिस भी रूप में हमारी सहायता की और सेवाओं की यदि आवश्यकता है तो हमें निसंकोच, मैं विद्यालय के प्रधानाचार्य जी से, सभी शिक्षक वृंदों से निवेदन करूंगा कि निसंकोच हम लोगों को आदेश स्वरूप में कहिएगा और हम अपनी सेवाएं देने के लिए सदैव तत्पर होंगे, क्योंकि यहाँ आने के बाद जिस तरह के भाव हमारे अंदर उठते हैं वो मैं पहले ही साझा कर चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच। और चूंकि मुझे ये भी कहा गया कि मुझे किसी दूसरे को भी टैग करना है, जी सॉरी, मैं हैंड ओवर करता हूँ। राजबाला मैम जी, राजबाला मैम प्लीज स्टेज पर आ जाइए। मैम अभी आई हैं हमारे बीच और मैं चाहूंगी धर्मेंद्र सर मैम का सम्मान करें। थैंक यू। फिजिकल एजुकेशन टीचर बलराज सर स्टेज पर आ जाइए। देखिए पी सर को सारे बच्चे बहुत पसंद करते हैं, इनका सम्मान करें। थैंक यू। बंदे यहाँ पर इस सुंदर प्रांगण में यहाँ पर उपस्थित परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षकगण, बच्चों व मेरे एलुमनी भाई बहन, मुझे पहले बैच में 1991 में सौभाग्य प्राप्त हुआ था। नवोदय में प्रवेश मुझे मिला था, लेकिन स्थिति विपरीत थी। आज इन तो बड़ी विपरीत स्थिति थी। हमें एक बाल्टी पानी भी बड़ी दूर से लेकर के आना पड़ता था और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, शांति हाउस का कैप्टन के नाते सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्यारे बच्चों, एक बात मैं आपको एक मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, सह ना सका जो वेग को वह कंकड़ हो गया, सह ना सका जो वेग को वह कंकड़ हो गया, और जो सह गया वो शंकर हो गया। जिस प्रकार से भगवान शंकर ने धरती पर उतरने वाली पवित्र गंगा मैया के वेग को सहा था, जिससे सारी सृष्टि का कल्याण हुआ, ठीक उसी प्रकार से जो नवोदय की रीति नीति से आपने सही मन लगा करके अपने शिक्षकों का, अपने गुरुजनों का, अपने हाउस वार्डन का, अपने मैस वाले भैया का, सबका आदर करके अपने नवोदय की रीति नीति से पढ़ाई कर ली, तो आप समाज के कल्याण के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस देश में उतरने जा रहे हो। नवोदय एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें तैयार किया जाता है बच्चे को। थोड़ा समय मेरा रहा नवोदय में, मैं इस प्रांगण तक नहीं पहुंच पाया। आज भी अगर अपने जीवन में मैं अपना सबसे बैड लक मानता हूं, घर की निजी स्थिति से मैं जल्दी मेरा नवोदय परिवार से जाना हुआ, लेकिन अपने जीवन का आज भी सबसे बड़ा मैं बैड लक मानता हूं। तो इस प्रांगण में भी मैं यहां पर आता तो मेरे बहुत बड़ा ही अपने आप को मैं जीवन में सौभाग्यशाली मानता। आप सब लोग, मैं ज्यादा समय ना लूंगा, आप सब लोग जो यहाँ पर आए, इसी तरीके से एक सुंदर कार्यक्रम यहाँ पर हर वर्ष हो, बड़ा अच्छा लगता है। मैं कहता हूं आप तो 6-6 वर्ष यहाँ की नवोदय की दाल खाते हो, जिसने एक दिन भी नवोदय की दाल खा ली वो पूरे अपने जीवन की आखिरी सांस तक नवोदय को नहीं भूल सकता। ये नवोदय की शक्ति है। हाँ, हमने भी शरारतें की नवोदय में, मैंने भी शरारतें की। एक बात का किस्सा मैं बताना चाहता हूँ आपको। मैंने भी मैस में दूध चोरी किया। तो शरारतें होती हैं, लेकिन अपने उसी तरीके से जो बड़ा तो कोई था ही नहीं। आपके तो बड़े सीनियर्स भी हैं, 12th क्लास वाले हैं, 11th वाले हैं, 9th वाले, छोटे बच्चे हैं। हमारा तो पहले बैच था, उसी तरीके से हम मैनेज कर लेते थे। एक बार एनुअल फंक्शन की मैं बात आपको बता रहा हूँ। एनुअल फंक्शन चल रहा था, सभी प्राइज बढ़ चुके थे, मेरे पेरेंट्स भी आए हुए थे, मेरे मम्मी पापा भी आए हुए थे, तो सभी प्राइज बढ़ चुके थे। तो मेरे मम्मी पापा ने मुझसे कहा तेरे को कुछ नहीं मिला। फिर लास्ट में अनाउंस हुआ, ऑल ओवर बेस्ट कोऑपरेटिव बॉय गोल्ड टू संदीप सहरावत। तब मुझे तो है उसी कोऑपरेट की वजह से जो आप लोगों के जो आओ संदीप यादव जी भी है भाई साहब हमारे साथ, जो ना ये भाई है बड़े अमित बंसल जी, हमारा बड़ा जो पहला बैच है ना, आज भी हमारा एक बैच है, व्हाट्सएप ग्रुप है। हम बड़े खुले रूप से सभी भाई बहन हमारे जितने बैच के थे, फर्स्ट बैच के, हम एक ही व्हाट्सएप ग्रुप में आज भी ऐड हैं। तो आप जिन संस्कारों में, जिन
हालातों में जिन दिन रात एक साथ रह करके बात करते हो, आप लोगों में सगे भाई बहन से, मामा फूफी की रिश्तेदारियों से, अपने गांव की रीति रिवाज की रिश्तेदारियों से परे हट करके आपस में प्यार हो जाता है। आज भी हम सब में एक बहुत बड़ा भाईचारा, बहुत बड़ा प्रेम, बहुत ज्यादा प्यार है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए इसी दिशा में मैं आगे निकल गया, समाज के लिए काम किया। आज नजोगढ़ क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहा हूं। अनेक भारतीय जनता पार्टी में रह करके मंडल अध्यक्ष से लेकर के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी से लेकर के अब मुझे मेरे पास जो जिला प्रवक्ता की जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जो है 2024 की आज पहली बार इस मंच से अनाउंस कर रहा हूं। मैं अपनी बात किसी से शेयर नहीं करता, और मुझे वो मेरे गुरु मंत्र है। आप जो है खामोशी से मेहनत करो, आपकी जो है सफलता आपका शोर मचा देगी दूर तक। आप अपनी खामोशी से, मैं आज अनाउंस करता हूं, मैं भी अपने 2024 के चुनाव की तैयारी कर रहा हूं यहां से विधानसभा की, और उसमें भी आप सब लोग का सहयोग का मुझे आवश्यक होगा। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए, आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे बोलने का मौका दिया, मुझे यहाँ पर बुलाया। जो टीम मैनेजमेंट यहाँ पर है, जो काम कर रहा है इस मीट के लिए, बहुत ही शानदार और प्रशंसा का उनका काम है। हर वर्ष आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, कारवा ऐसे ही आगे चलता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू संदीप भाई। और संदीप शेरावत भाई के बैच से अगले बैच में मैं आया था। मैं आप लोगों को सिर्फ 3 से 4 मिनट का ही समय देने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं रेस्पेक्टफुल टीचर्स, आपका दिल से आभारी हूँ इस बात के लिए कि जो आप लोग हमें सिखाते हैं, जो आपने उस समय हमें सिखाया, शायद हमें उस समय समझ नहीं थी, लेकिन उसका बहुत बड़ा योग आज हमारे दिल में है, जिसकी वजह से जो भी हम कर पा रहे हैं वो उसकी वजह से ही है। मेरे छोटे बहनों और भाइयों, मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ पर एक चॉकलेट देने आया हूँ। ये आएगा थोड़ा दूर। तो आप में से कौन एक चॉकलेट लेके आया मैं घर से आज? मैंने सोचा आज ये किसी को गिफ्ट देनी चाहिए। कोई चाहता है इसे पाना? चलिए, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाला हूँ। और ये कहानी मैंने आज से 10 साल पहले सुनी थी, मुझे किसी ने दी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को शेयर किया जाए। सो जैसे पीछे धर्मेंद्र भाई थोड़ी देर पहले आए थे, ऐसे ही एक प्रोफेसर थे जो अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर देने के लिए क्लास में जाते थे। जैसे हमारे टीचर हमें सिखाने आते हैं, ऐसे ही वो बड़े बच्चों को सिखाने के लिए जाते थे। तो वहाँ पर एक बार एक लेक्चरर अपने साथ एक अंडे की ट्रे लेके आए, साथ में एक स्टोव लेके आए, एक पानी उबालने के लिए जो बर्तन होता है वो लेके आए, एक कांटा लेके आए, एक चाकू लेके आए, और उसने आके उन्होंने अपनी टेबल पे सारा सामान रख दिया। रखने के बाद उन्होंने वहाँ से एक अंडे को उठाया और लोगों से पूछा, स्टूडेंट से, कि बताओ इस अंडे को कैसे तोड़ा जा सकता है। तो क्या लगता है आपको कि बच्चों ने क्या जवाब दिया होगा? हाँ, एक ने कहा अंडे को नीचे गिरा दो तो टूट जाएगा। बहुत बढ़िया, ये जैसे का आंसर आया। उबाल के, हाँ उबाल के। किसने जवाब दिया सबसे पहले? अच्छा, वहां से आया उबाल के। हाँ, दूसरे के सर पे दे मारो तो भी टूट सकता है। हाँ, ये मैंने किया है पहले स्कूल में, बहुत किया है। चाकू से, हाँ वहां से कब आ जाएगी? पतीले पे मारकर तोड़ा जा सकता है। बहुत बढ़िया। चम्मच से, एक एक करके, जो बोलना चाहेगा हाथ खड़ा करेगा। टेबल से हिट करके तोड़ा जा सकता है। बहुत बढ़िया। हांडी से, चाकू से, हाथ खड़ा करिए। हाँ जी, कांटे से। हाँ बहुत बढ़िया, कांटे से। और कोई तरीका? हथौड़े से। हथौड़ा तो था ही नहीं। अच्छा, तोड़ना ही क्यों है? हाँ, ये भी एक अच्छा सवाल है, लेकिन वो पूछा गया था। अच्छा, उसमें से कोई एक ऐसा बच्चा था, एक ऐसा स्टूडेंट था, उसने कहा कि इसको तूड़े में रख दो तो टूट जाएगा। टूट सकता है ना? तूड़ा जानते हैं, जो गाय भैंस चूड़ा खाती है ना, गेहूं से निकलता है। टूट सकता है? कैसे टूटेगा? हाँ, वो धीरे धीरे, और जब वो टूटेगा तो उससे चूजा पैदा होगा, है ना, वो हैचिंग बोलते हैं उसको।
जैसे मुर्गी से बच्चा होता है, उसके बाद अंडे से मुर्गी होती है। अब उन लेक्चरर ने एक सवाल पूछा कि बाकी जितने तरीकों से अंडे को तोड़ा गया, जहाँ पर हमने उसे टेबल पे तोड़ा, किसी के सर पे तोड़ा, ज़मीन पे गिरा के तोड़ा, और दूसरी जगह मैंने उस अंडे को जब भूसे में रखा तो वो खुद ब खुद टूट गया। इन दोनों के टूटने में अंतर क्या है? हाँ, एक में चूजा पैदा हुआ, हाँ, एक में जिंदगी बनी नहीं और एक में जिंदगी बन गई। तो ये दो चीजें हुई, लेकिन इसमें दोनों के टूटने के प्रोसेस में क्या अंतर था? क्योंकि ये चॉकलेट उसको मिलने वाली है जो वो आंसर देने वाला है। जो बताना चाहेगा वो आगे आके बताएगा मुझे। हाँ, अंदर आ, पीछे से आंसर आया। हाँ, आ जाओ मेरे पास आ जाओ, बैठो बताओ ऊपर आओ। सर, एक में मैन फोर्स लगा था और एक में मैन फोर्स नहीं लगा था। बहुत बढ़िया। एक में को फोर्सफुली तोड़ा गया, दूसरा नेचुरली। यस, एक में फोर्स ले तोड़ा गया, दूसरा नेचुरली टूटा। अभी भी मेरे को वो जवाब नहीं आया जो मैं चाहता था। चलो, अच्छी कोशिश है, हो सकता है आप दोनों उम्मीदवार हो अभी भी। चलिए, एक और आंसर। पहले में उन्होंने समय नहीं लिया, उन्होंने बिल्कुल भी पेशेंस नहीं रखा, टूटना तो टूटना ही था। और दूसरे में उन्होंने पेशेंस रखा, जिससे अच्छा रिजल्ट निकला। बहुत बढ़िया। एक अंतर है इसमें कि एक में समय ज्यादा लगा, दूसरे में समय कम लगा। जल्दी से गया, टूट गया। समय से, सबर से, सबर मतलब समय, धीरे धीरे। एक का प्रोसेस धीरे, दूसरे का प्रोसेस फास्ट। पेशेंस चाहिए। बहुत बढ़िया आंसर है। अभी भी एक अंतर का और डिफरेंस है, मैं वेट कर रहा हूं। चलिए, मैं बता देता हूं आपको वो राज की बात। हाँ, एक में जिंदगी पैदा हुई, दूसरे में जिंदगी नहीं पैदा हुई। ये रिजल्ट है, ठीक है। जो उन प्रोफेसर साहब ने बताया, ये विद्यार्थी जीवन की तरह है। अगर आप जल्दी शुरुआत करते हो, आपका बिल्कुल वेट नहीं करते, आपकी सफलता बिल्कुल खराब ही होगी। आपने लंबे समय तक इंतजार करा, इसलिए आपको एक अच्छा परिणाम मिला, जैसे कि चूजा निकला। बहुत बढ़िया। विद्यार्थी जीवन में जो मेहनत करते हैं उसकी वजह से। चलिए, उसमें जो लेक्चरर साहब ने जो बताया, प्रोफेसर साहब ने, उन्होंने ये बताया कि जितने भी तरीकों से अंडे को तोड़ा गया भूसे के अलावा, वहां पर फोर्स जो थी वो बाहर से लगाई गई, और जब उसे भूसे में रख दिया गया तो फोर्स जो था वो अंदर की तरफ से लगा और वो टूटा। दोनों के टूटने के डिफरेंस में एक जगह प्रेशर बाहर से है, दूसरी जगह प्रेशर अंदर से है। तो प्रोफेसर साहब ने कहा कि जो लोग कोई भी काम करते हैं, सीखते हैं, पढ़ते हैं आगे बढ़ने के लिए, और अगर वो प्रेशर अपने मन से क्रिएट करते हैं तो उनके लिए एक नया जीवन वेट कर रहा होता है। अगर आप सभी चाहते हो कि भविष्य में आपको कुछ ऐसा मिले जो आपके लिए नई जिंदगी हो और आप एंजॉय करें जीने के लिए, तो सबसे पहली चीज़ है कि पढ़ाई इसलिए नहीं करनी है क्योंकि हमारे पापा मम्मी कहते हैं या हमारे टीचर्स कहते हैं। पढ़ाई इसलिए करनी है क्योंकि हमें अंदर से सीखना है। तो मैंने इस जो कहानी को सुना, तब से मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपने लिए पढ़ूँ, ना कि किसी और के लिए, ताकि मैं अपनी एक नई जीवन की शुरुआत कर सकूँ और बेहतर तरीके से जिंदगी जी सकूँ। थैंक यू। ये चॉकलेट में दूंगा जो सबसे लास्ट में मेंबर आए थे जो आंसर देने के लिए। आइए, जल्दी आइए, दौड़ के आइए। ये इसलिए, वैसे तो सभी ने आंसर दिए, लेकिन इन्होंने फिर भी कोशिश की सबसे आखिरी तक, और जो कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। थैंक यू। एक साथी जिनका जन्मदिन है, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करती हूँ। देखिए, ये होता है अपनी जड़ों से जुड़ना। हमारा यही उद्देश्य है कि हम यहाँ से जुड़े रहें, ज़मीनी स्तर पर कार्य करें, और आप सबके साथ। देखिए उनका कितना अच्छा सुझाव है, हम सबके साथ उनका बर्थडे मनेगा, तो ज़ोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और इसी के साथ बच्चों की काउंसलिंग करना चाहते हैं, उन्हें मोटिवेशन। जो 2009 बैच है, इसमें जो है इस साल की एलुमनी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है, लगभग 50,000 से ऊपर। तो
देखो लड़कियों की जो है फैशन भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। जब तक फटते ना पजामा पकड़ के प्लीज आइए, आप हमारे बैच के सबसे पुराने टीचर हैं। सुधा मैम, बच्चों ये सब हमारे डांस करना छोड़ के ना जाए। और सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। रिस्पॉन्स आया, बॉयज चाहते हो